السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈیو ودکسا میں خوش آمدید۔ آج میں حاضر خدمت ہوں حاصل جست بائی وجیہ محمود کا 13 ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ لے کر۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ صبرینہ ثانیہ بیگم کو لیے اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ثانیہ بیگم نے صبرینہ کو مخاطب کیا۔ الحمدللہ کافی بہتر ہوں۔ ان کی آواز میں موجود اداسی ثانیہ بیگم سے چھپی نہ رہ سکی۔ سب خیریت ہے نا صبرینہ؟ میرا مطلب کل تم ہال میں بالکل ٹھیک تھی، مگر پھر اچانک ہی تمہاری طبیعت خراب ہو گئی۔ وہاں سے واپسی پر بھی تم کافی پریشان اور اداس لگ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ کل ہی ان کی بدلتی طبیعت بھاگ چکی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ بس ایسے ہی۔ انہوں نے نظر چراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم اب مجھ سے جھوٹ بولو گی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر بتاؤ کیا وجہ ہے تمہاری پریشانی کی؟ صبرینہ اب مزید وہ بات ثانیہ بیگم سے نہیں چھپا سکتی تھی۔ پہلے بھی وہ اپنے ماضی کی ساری داستان انہیں سنا چکی تھی، اور ابھی وہ یہ خبر دینے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں، جن میں سے ایک آواز تو وہ فوراً پہچان گئی۔ وہ تاشفین کی آواز تھی، مگر وہ عام انداز میں نہیں، بہت غصے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ دوبارہ اس کی اونچی آواز پر وہ دونوں باہر آئیں کہ صبرینہ کی نظر اس شخص پر پڑی جو تاشفین کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کوئی نہیں بلکہ فیضان صدیقی عرف فیضی تھا۔ صبرینہ اور ثانیہ بیگم قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تاشفین اپنی بات دہراتا ہوا بولا کہ سامنے کھڑے فیضان کی نگاہ صبرینہ پر پڑی۔ پیچھے کھڑی آبرو کو امید نہ تھی کہ فیضان تایا یوں ان کے گھر آ جائیں گے۔ میں یہاں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، صبرینہ کی جانب دیکھتے اس نے تاشفین کو جواب دیا۔ ان کی اس بات پر وہاں موجود نور اور زاویار ٹھٹکے۔ وہ پہلی بار تاشفین کو اتنے غصے میں دیکھ رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں آپ کا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے بہتر ہے جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں۔ تاشفین سب کے سامنے بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ تاشفین کی بات پر فیضان آس پری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ایک بار میری بات تو سن لو بیٹا، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تمہاری ماں نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے۔ صبرینہ نے درد بھری نظروں سے اس چہرے کو دیکھا جس سے محبت اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، جو آج بھی سامنے کھڑا اس پر الزام لگا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ثانیہ بیگم حیران تھی کہ وہ شخص جس نے صبرینہ کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فیضان تھا۔ دھوکہ؟ تاشفین استحضاء انداز میں ہنسا۔ دھوکہ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا میری ماں کے ساتھ؟ اس کے لہجے کی سختی وہاں موجود ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ بیٹا تم غلط۔ فیضان نے قدم آگے بڑھائے۔ ایک قدم بھی مزید آگے مت بڑھانا۔ آپ دھوکے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے آپ تو وہ شخص ہیں جس کے لیے میری ماں اپنا سب کچھ چھوڑ آئی، اور آپ نے ایک لمحے کے لیے کچھ بھی سوچے بغیر انہیں چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بلند اور الفاظ میں اذیت تھی۔ دھوکہ اسے کہتے ہیں فیضان صاحب۔ تاشفین کا یہ روپ وہاں موجود سب افراد آج پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ فیضان نے پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہے کہ تاشفین دوبارہ بول پڑا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ انہیں تو ان کی ہر غلطی کی سزا آپ کی صورت میں مل گئی، مگر آپ نے اپنی زندگی میں کیا کھویا؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہوتے ایک بار بھی پلٹ کر اپنی بیوی اور بچے کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ اپنی ماں کا وکیل تھا جو اس پر گزری ہر اذیت کا جواب چاہتا تھا۔ بیٹا میری بات سنو، مجھے اندھیرے میں رکھا گیا تھا، میں تم سے اپنی اولاد سے بے خبر تھا، مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا تھا، ورنہ میں ضرور پلٹ۔ بے حسی آپ پر تمام ہوتی ہے۔ تاشفین ان کی بات کاٹتے ہوئے قدرے افسوس سے بولا، یعنی پلٹ کر دیکھنے کے لیے میرا ہونا ضروری تھا؟ کیا میری ماں کا وجود آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ میری ماں سے محبت کے دعوے دار تھے نا آپ، مگر حقیقت ہے کہ… وہ رکا، غصے سے اس کے اعصاب تن چکے تھے۔ آپ ایک بزدل مرد ہیں فیضان صاحب، اور بزدل مردوں کو محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں۔ اس بار لہجے کے ساتھ اس کے الفاظ بھی بھاری تھے جو فیضان کا دل چیر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ہر حقیقت سے پردہ اٹھ رہا تھا، بات بڑھتی جا رہی تھی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو بیٹا، ایک بار مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع تو دو۔ فیضان کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ مجھے کسی صفائی کی ضرورت نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جہاں اتنے سال آپ نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا تک نہیں، آج بھی وہیں ہماری زندگیوں سے دور چلے جائیں۔ وہ پتھر دل نہیں تھا، مگر اپنی ماں کی ہر اذیت، ہر تکلیف، ہر آنسو کا شاہد تھا۔ ایسا مت کہو بیٹا، میں تمہارا باپ… میرا کوئی باپ نہیں، میری صرف ماں ہے، اور وہ وہی عورت ہے جسے آپ نے بے یار و مددگار اور اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اتنے سال تنہا رہی صرف میرے خاطر، اپنی زندگی کی ہر اذیت اس نے میری خاطر خود پر برداشت کی، اور میں… وہ رکا، فیضان کی آنکھوں میں دیکھتا بولنے لگا، آپ کے لیے تڑپتا رہا،
आपकी मोहब्बत की खातिर, बाप की शफकत की खातिर। मगर फिर मुझे मालूम हुआ कि जिस शख्स के लिए मैं तड़पता रहा हूँ वो तो इस काबिल ही नहीं कि उसे याद भी किया जाए। उसके लहजे में दर्द था। वो आज अपने बाप के सामने खड़ा शिकवा कर रहा था। वो फैज़ान की कोई दलील, कोई वजाहत सुनने को तैयार ना था कि फैज़ान ने कुछ फासले पर खड़ी सबरीना को मुखातिब किया। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो सबरीना? बताओ इसे कि तुमने कैसे मुझसे बात करें फैज़ान साहब, मेरी माँ को बीच में मत लाएं। वह फैज़ान और सबरीना के दरमियान आता बोला। सबरीना कदम बढ़ाते हुए फैज़ान के मुकाबले आ खड़ी हुई। ताशफीन ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि सबरीना ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोका। अब वो अपना मुकदमा खुद लड़ने आई थी। कुछ हिसाब वो खुद अपने मुजरिम से लेना चाहती थी। सबरीना ने उसके चेहरे की जानिब देखा। ये वही चेहरा था जिससे उसने मोहब्बत की थी। ये वही शख्स था जिसके लिए वो अपने वालिदैन तक को छोड़ आई थी। और ये वही चेहरा था जिससे वापसगी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जबकि दूसरी जानिब खड़े फैज़ान के हवास पर इस वक्त एक ही बात सवार थी कि आखिर उसे इतना अरसा उसकी औलाद से बेखबर क्यों रखा गया। तुम ही इसे बताओ सबरीना कि कैसे इतने साल तुमने मुझे मेरी औलाद को छुपा कर रखा, मुझे खबर तक न होने दी। फैज़ान अपने सामने खड़ी सबरीना को मुखातिब करते बोला। सबरीना के दिल में फ़ौरन ख्याल पैदा हुआ कि वो तो आज भी उसके लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद के लिए वापस आया था। तो आखिर इतने साल बाद आज तुम पलट ही आए फैज़ान। पहले भी जब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए थे तो मेरी खुशियाँ मुझसे रूठ गई थी और आज भी तुम्हारा वजूद मेरे लिए सिर्फ तकलीफ़ का सामान बन रहा है। सबरीना की आवाज़ कपकपाहट का शिकार थी मगर वो मुमकिन तौर पर अपनी आवाज़ को मजबूत रखे हुए थी। मैंने बहुत दुआ की थी कि मैं ज़िंदगी भर दोबारा कभी तुम्हारा चेहरा ना देखूं, मगर मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मेरी ये दुआ भी कबूल नहीं हुई और आज तुम फिर मेरे सामने खड़े हो अपने सवालात और इल्ज़ामात के साथ, मगर मैं तुम्हें अपने किसी अमल की सफाई नहीं दूंगी। एक आंसू उनकी आंख से निकलते हुए उनके रुखसार पर आ गिरा। तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो सबरीना, तुमने मुझे मेरी औलाद से बेखबर क्यों रखा? मेरा पूरा हक था कि वो भूल गया था कि छोड़कर जाने वाली सबरीना नहीं, वो खुद था। अपनी औलाद के बारे में जानने का हर हक तुम तलाक के कागजात के साथ खो चुके थे फैज़ान। सबरीना अपनी आवाज़ में बुलंद करते हुए बोली और अपना हाथ ताशफीन के कंधे पर रखा। ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। ताशफीन ने अपना हाथ अपने कंधे पर रखे सबरीना के हाथ पर रखा। सिर्फ कह देने से तुम्हारा बेटा नहीं हो जाएगा, इसके रगों में दौड़ने वाला खून आज भी मेरा है। फैज़ान के लहजे में गुस्से और तंज का अंसर वाज़ेह था। इसके रगों से तुम्हारा खून निकालने की ताकत तो मुझ में नहीं, मगर हाँ, मैंने इसकी तरबियत ऐसी की है कि वो औरत की इज्जत और कदर करना जानता है, वफा के नाम पर किए गए वादे निभाना जानता है। इसलिए बेहतर है कि तुम पलट जाओ, क्योंकि जिस चीज़ के सवाली बनकर तुम यहाँ आए हो वो तुम्हें कभी हासिल नहीं हो सकती। अल्फाज और लहजा सख्त रखने के बावजूद आंसू मुसलसल उनकी आंखों से बह रहे थे। मैं आज तक इस पछतावे में जीता रहा कि मैंने तुम्हें छोड़कर तुम पर बहुत जुल्म किया था। मेरी उम्र इस पछतावे की नज़र हो गई, मगर आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे से ज़्यादा तुम जालिम थी। फैज़ान अफसोस से कहता कुछ कदम आगे आया। वो खुद कसूरवार होने के बावजूद भी सबरीना को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहा था। मुझे मेरी औलाद से महरूम रखा, उसे मेरे ही खिलाफ करते मेरे सामने ला खड़ा किया और खुद खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हो। मेरी औलाद के दिल में जहर भरकर उसे मेरा ही हरीफ बना दिया। मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि तुम। सबरीना का ज़ब्त जवाब दे गया। फैज़ान की बात मुकम्मल होने से पहले ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। अम्मो जान! ताशफीन तेज़ी से उनकी जानिब बढ़ा। पीछे खड़ा ज़ावियार, नूर और आबरू भी उस जानिब आए। अम्मो जान! अम्मो जान! उन्हें पुकारते ताशफीन की आवाज़ में दर्द था, तड़प थी, किसी अजीज़ को खो देने का डर था। फैज़ान ने एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि ताशफीन की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। एक भी कदम आगे मत बढ़ाइएगा, इससे पहले कि मैं हर लिहाज भूल जाऊं, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। उसकी आवाज़ में सख्ती थी, तंबी थी। फैज़ान कदम पीछे की जानिब उठाते पलट गया, जबकि बाकी सब सबरीना की जानिब मुतवज्जा हुए, जो अभी भी बेहोश थी। वो इस तरह की कैफियत में मुसलसल कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो आबरू के हमरा सबरीना को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर आया था। ज़ावियार और नूर सानिया बेगम को छोड़कर हॉस्पिटल आने वाले थे। आबरू की नज़र उसके हाथों पर पड़ी। उसके हाथ काँप रहे थे। वजह उसके दिल में मौजूद अपनी माँ को खो देने का खौफ था। उसकी हालत आबरू को भी बेचैन कर रही थी। ताशफीन थककर दीवार के साथ लगी बेंच पर जा बैठा और अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। वो खुद भी बहुत परेशान थी।
مگر اس وقت تاشفین کی پریشانی اس کے لیے زیادہ اہم تھی۔ وہ قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی اور اس کے ساتھ بیٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تاشفین نے گردن اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود درد آبرو کو تکلیف دے رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تاشفین نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ آپ بس دعا کریں آبرو کہ انہیں کچھ نہ ہو، ورنہ وہ بات مکمل نہیں کر پایا۔ آبرو نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھا۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ یوں ہی بیٹھے تھے کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ تاشفین تیزی سے ان کی جانب گیا۔ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھا، ایسے معاملات دیکھنا ان کا معمول تھا، مگر جب بات اپنوں پر آ جائے تو انسان کی ساری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تاشفین کچھ کہنے سے پہلے ہی ڈاکٹر بولنے لگا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، شدید ذہنی دباؤ اور بی پی لو ہو جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا؟ تاشفین کے سوال پر ڈاکٹر دوبارہ بولنے لگا، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، مگر کوشش کریں کہ انہیں ہر قسم کی پریشانی اور ذہنی دباؤ سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر بات مکمل کرتے ہوئے چلا گیا۔ تاشفین کے چہرے پر تشکر بھری مسکراہٹ آئی۔ اس کی امو جان ٹھیک تھی۔ اس نے آبرو کی جانب دیکھا، وہ بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ تاشفین کچھ فاصلے پر جاتے زاویار کو کال ملانے لگا، جو ابھی تک نور کے لیے ہاسپٹل نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کال کرتے ہوئے واپس آیا کہ نظر آبرو پر پڑی، جو دیوار کے ساتھ کھڑی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھ رہی تھی۔ اس کی مہندی کا رنگ اب بھی سرخ تھا۔ خوشیوں کو اس کی زندگی میں آئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ بے حد پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کیا اس کا سایہ تاشفین کی زندگی میں بھی مشکلات لا رہا تھا؟ فیضان کی ان کی زندگی میں واپسی کا سبب آبرو سے جڑا ہوا رشتہ ہی تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ تاشفین اس کے پاس آیا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے آبرو کی نظریں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ الفاظ کا تبادلہ کیے بغیر ہی اس کی نظریں آبرو کو تسلی دے رہی تھی۔ پریشان مت ہو آبرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے تسلی دے رہا تھا کہ آبرو کی نظر اس کی جانب آتے نور اور زاویار پر پڑی، جنہیں دیکھتے تاشفین اور آبرو ان کی جانب چل پڑا۔ صبرینا کو کچھ دیر پہلے ہی ہوش آ گیا تھا۔ تاشفین ان کا ہاتھ تھامے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ آبرو کو زاویار اور نور کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی گھر بھیج چکا تھا، کیونکہ صبرینا کو ڈاکٹرز ابھی مزید کچھ دیر انڈر آبزرویشن رکھنا چاہتے تھے۔ صبرینا کا بجھا ہوا چہرہ، افسردہ چہرہ دیکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر فیضان پر غصہ آنے لگا۔ صبرینا نے آہستہ سے آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ ناگہان زدہ آواز میں بولی۔ پلیز امو جان، آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی، آپ کی طبیعت پہلے ہی بہت مشکل سے سنبھلی ہے، پلیز، وہ اصرار کرتے ہوئے بولا۔ مگر بیٹا، ابھی بات کرنا بہت ضروری ہے، صبرینا بزد ہوئی۔ تاشفین خاموش ہو گیا۔ وہ تمہارا باپ ہے بیٹا، تم چاہو تو اس سے مل سکتے ہو، وہ واقعی تمہارے بارے میں لا علم تھا اور اس میں میری ہی غلطی۔ آپ کی صرف ایک غلطی ہے امو جان، صرف ایک، اس شخص کا انتخاب اور اس پر اعتبار، اس کے علاوہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، وہ ہاتھ ان کے چہرے پر رکھتا بولا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ آپ جیسی سمجھدار عورت کیسے کسی کے دھوکے میں آ گئی، مگر اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے دوگلے پن سے کسی کو بھی اپنی باتوں میں پھنسا سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں فیضان کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ مگر بیٹا، وہ تمہارا باپ ہے، تم، امو جان، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، میری ماں، میرا باپ، آپ کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی خونی رشتہ نہیں، خاص طور پر وہ شخص جو میری ماں کی زندگی میں آئی ہر مشکل کی وجہ ہے۔ وہ صبرینا کے ساتھ ہوئے ظلم کے لیے فیضان کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ سب بھول جاؤ بیٹا، سب بھول جاؤ۔ صبرینا کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی۔ سب کچھ بھلا بھی دوں امو جان تو اپنی محرومیاں کیسے بھلاؤں کہ میں اپنی ساری زندگی پہ آپ کی شفقت اور محبت کے لیے ترستا رہا۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی، محرومیوں کی۔ میری بیماری میں آپ میرے ساتھ جاگی، خوشی میں آپ خوش ہوئیں، غم میں آپ غمگین ہوئیں، اور وہ شخص جو خود کو میرا باپ کہتا ہے کہ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر ہماری جانب دیکھا، اگر وہ اس وقت پلٹ جاتے تو شاید ہم انہیں معاف کر دیتے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اس موضوع پر کوئی بات نہ کی جائے۔ وہ بات مکمل کرتے بولا، آپ کی صحت آپ کی زندگی سے زیادہ میرے لیے کچھ اہم نہیں۔ وہ ان کا ہاتھ چومتے بولا، جس پر صبرینا نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم نے فون کیا آبرو کو؟ آپ کیسی طبیعت ہے صبرینا کی؟ لانچ میں بیٹھی رابعہ بیگم نے صالحہ بیگم کو مخاطب کیا۔ صالحہ بیگم اس سارے معاملے کے بعد رابعہ بیگم کے گھر آئی تھیں۔ میری بات ہوئی ہے آبرو سے، اسے ہوش آ گیا ہے، انشاءاللہ جلد مزید بہتر ہو جائے گی۔ وہاں ان دونوں کے ساتھ فاطمہ اور اسبا بھی موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی،
लॉन्च में एकदम फैजान दाखिल हुआ। वो सबरीना के घर से निकलने के बाद अब घर पहुंचा था। लॉन्च में सालिया बेगम को बैठा देखकर वो उसी जानिब आ गया। वहाँ मौजूद हर फर्द पर उनकी माजी की हकीकत आश्कार हो गई थी। फैजान के बैठते ही इसबा कदम उठाते किचन की जानिब चली गई। कुछ लम्हे उन सब के दरमियान खामोशी हायल रही, जिसे फैजान की आवाज़ ने तोड़ा। मैं तो अब तक हैरान हूँ कि हमें पहले इस बारे में अंदाज़ा क्यों नहीं हो सका। उसके लहजे में गुस्सा वाज़े था। हमें भला कैसे अंदाज़ा होता? हम कौन सा सबरीना को पहले से जानते थे, बल्कि हमें तो उसका नाम तक नहीं मालूम था। राबिया बेगम फैजान को जवाब देती बोली। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, जबकि फैजान के चेहरे पर सबरीना के बारे में छाई बेचैनी पास बैठी फातिमा को मुस्तरब कर रही थी। उसने इतने साल मुझसे मेरी औलाद छुपाई, इतने साल में बेखबर रहा। फैजान को सिर्फ वो ज़्यादती याद थी जो उसके साथ हुई थी, मगर तुमने भी तो पलटकर एक बार भी उससे राब्ता तक नहीं किया था। राबिया बेगम की बात पर फैजान ने हैरत से उनकी जानिब देखा। वो उसकी बजाय सबरीना का साथ दे रही थी। सालिया बेगम उन्हें सब बता चुकी थी। मैं किस मुँह से उससे राब्ता करता आपा? मैं तो उससे मोहब्बत के दावे करके शादी किसी और से कर चुका था। फातिमा ने अफसोस भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। इतने साल गुजरने के बाद वो आज भी वहीं खड़ी थी। तो फिर इसमें कसूर किसका हुआ फैजान? क्या पता अगर एक बार तो तुम पलटते तो वो। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। और राबिया बेगम की बात काटता बोला। फातिमा के लिए अब मज़ीद वहाँ बैठना मुश्किल हो चुका था। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ज़िंदगी सिर्फ आपकी ही की नहीं, और भी बहुत लोगों की बर्बाद हुई है, मगर अफसोस इस बात का है कि आपको कल भी सिर्फ अपनी फ़िक्र थी और आज भी। वो अफसोस भरे अंदाज में कहती हुई वहाँ से चली गई। फैजान, सोच समझ कर बात क्या करो। राबिया बेगम उसे तंबी करती बोली। तो सही ही तो कह रहा हूँ मैं। सारी उम्र मैं इस पछतावे में रहा कि मैंने सबरीना के साथ ज़्यादती की है, मगर वो तो खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी औलाद मुझसे छुपाकर खुद दूसरी शादी कर ली और ऐश की ज़िंदगी गुजारने लगी। फैजान की ज़बान जहर उगलने लगी। अपनी की गई हर ज़्यादती को वो एक ही लम्हे में फरामोश कर चुका था, जबकि उसकी इस बात पर सालिया बेगम की बर्दाश्त ख़त्म हुई। आप गलत हैं भाईजान। उनके बोलने पर वो दोनों उनकी जानिब देखने लगे। आप नहीं जानते उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें उठाई हैं। आपकी औलाद को पालने की खातिर वो सारी उम्र तन्हा रही है। फैजान ने हैरत से उनकी जानिब देखा। आपके एक फैसले ने उसकी ज़िंदगी की हर खुशी उससे छीन ली थी। सालिया बेगम आहिस्ता आहिस्ता हर रात से पर्दा उठाने लगी थी कि तलाक के बाद कैसे सबरीना दर बदर की ठोकरें खाती रही थी। अपने वालिदैन का गम, अपनी औलाद पर बनता हुआ सवालिया निशान, ज़िंदगी की आजमाइशों का तन्हा मुकाबला करना, फैजान पर होता हर इंकशाफ उसे एक बार फिर उन्हीं पछतावे की जानिब धकेल रहा था जिनमें वो इतने साल से घिरा था। उसकी मुमकिन तौर पर सोची हुई हर मुश्किल से ज़्यादा मुश्किलात सबरीना को झेलनी पड़ी थी। उसकी ज़िंदगी उसके हर गुमान से बढ़कर अज़ियतनाक थी। आप शायद भूल गए थे कि वो अपनी सब कश्तियाँ जलाकर आपके पास आई थी फैजान भाई। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मसाइल का सामना किया है और वजह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सालिया बेगम खामोश हो गई, जबकि सामने बैठे फैजान का ज़मीर इस वक्त उसके मलामत में मसरूफ़ था। शाम में डॉक्टर्स उन्हें रिसार्च कर चुके थे। ताशफिन कुछ देर पहले ही उन्हें घर लेकर आया था। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। उनकी दाएं जानिब नूर थी तो बाएं जानिब ज़ावियार, जबकि आबरू और ताशफिन कुछ फासले पर रखे सोफे पर बैठे थे। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अम्मो जान। नूर आंखों में नमी लिए उन्हें साथ लगाते हुए बोली। उन दोनों पर हर हकीकत आश्कार हो चुकी थी, मगर माजी की किसी बात को दोहराना नहीं चाहते थे। वो ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहते थे जो सबरीना के लिए तकलीफ़ का सामान बने। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? नूर की आवाज़ रुन चुकी थी। मेरी जान, परेशान मत हो, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते बोली। बूढ़ी हो गई हो ना, इसलिए कभी कभी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोली और अपनी दूसरी जानिब बैठे ज़ावियर को भी खुद से लगाया, जबकि नज़रों का मरकज़ सामने बैठे ताशफिन और आबरू थे। ये बच्चे ही तो उनकी कुल कायनात थे, हर मुश्किल का हासिल, उनके सब्र का फल। कुछ देर यूं ही वो बातें करते रहे कि ताशफिन के फ़ोन पर कॉल आने लगी, जिसे सुनने के लिए वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि एकदम कुछ याद आने पर ज़ावियर भी कमरे से निकलता अपने कमरे की जानिब चला गया। आबरू, इधर आओ बेटा। सबरीना ने आबरू को अपने पास बुलाया, जिस पर वो कदम उठाती उस जानिब आ गई। इतनी परेशान क्यों बैठी हो? उनके लहजे में नरमी थी। आबरू ने नज़रें उठाते उनके शफीक चेहरे की जानिब देखा। क्या वो औरत इस काबिल थी कि उसके साथ वो सलूक होता जो उसके ताया ने किया था? कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
मैं इस सब के लिए आपसे माजरत ख्वाह। पास बैठी नूर उन दोनों के माबेन होती हुई गुफ्तगू सुन रही थी। अरे बेटा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? कल जो भी हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था, बल्कि इस सारे मामले से सबसे ज़्यादा मुतासिर तुम्हारी ताशफीन की खुशियाँ हुई हैं मेरी वजह से। ऐसा मत कहें आंटी, जो हुआ इसमें आपका भी तो कोई कसूर नहीं था। बस उसकी बात अभी जारी ही थी कि उसे बाहर से ताशफीन की आवाज़ आई। वो काफ़ी गुस्से में था। आबरू को अंदाज़ा हो गया था कि बाहर कौन आया है। नूर, तुम आंटी के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो कदम उठाती बाहर चली गई। कमरे से बाहर निकलते उसने अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि उसकी नज़र सामने ताशफीन के मुकाबिल खड़े फैज़ान पर पड़ी। जिसका डर था वही हो रहा था। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो उस जानिब चल पड़ी थी कि उसकी समाज से ताशफीन की आवाज़ टकराई। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? जो आपका मकसद था वो तो पूरा हो गया ना? वो काफ़ी गुस्से में था। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे वाकई असल हकीकत के बारे में कुछ इल्म नहीं था। आज फैज़ान के लहजे में सिर्फ इल्तिजा थी। बस कर दें प्लीज़, बस कर दें। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने आपको हकीकत नहीं बताई, इसलिए आप उनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, मगर एक बार इंसानियत के नाते ही उनका सोच लें। वो बीमार है, इसी बात का कुछ लिहाज कर लें। वो इस वक्त शदीद गुस्से और परेशानी की मिलीजुली कैफियत से गुजर रहा था। गुस्सा उसके मिजाज का हिस्सा नहीं था, मगर हालात उसे अपने मिजाज के खिलाफ जाने पर मजबूर कर चुके थे। मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ बेटा। फैज़ान की बात पर ताशफीन के गुस्से में इजाफा हुआ, ताकि इस बार आप उन्हें कोई मज़ीद गहरी चोट पहुँचा सकें। और वैसे भी आप उनसे मिलने का हर हक खो चुके हैं। वो तनसे लहजे में बोला। नहीं बेटा नहीं, मैं बस तुमसे और सबरीना से माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझसे? उनकी बात पर ताशफीन के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। माफ़ी? मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, क्या आपकी एक माफ़ी से सब ठीक हो जाएगा? ताशफीन के सवाल पर वो खामोश रहे। जवाब नहीं है ना आपके पास? फैज़ान एक कदम आगे बढ़ा। मगर बेटा, मैं अपनी गलतियों का असाला करना चाहता हूँ। अगर आप वाकई हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी ज़िंदगियों से दूर चले जाएं। वो इन हालात से थक चुका था। वो अब मज़ीद कोई नई बहस नहीं छेड़ना चाहता था। मगर बेटा, ताया जान प्लीज़। आबरू की आवाज़ पर वो दोनों उस जानिब देखने लगे। वो कदम उठाती ताशफीन के पास जाते उनके सामने आ खड़ी हुई। आबरू बेटा, प्लीज़ ताया जान, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। इसी में सबकी बेहतरी है। फैज़ान को अब मज़ीद वहाँ रुकना बेसूद लगा और वो कदम उठाते हुए वापस चला गया। वो कमरे में दाखिल हुई तो नज़र बेड पर बैठे आफाक पर पड़ी, जो कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था। शादी के बाद वो आज पहले दिन ड्यूटी पर गया था। उसकी सारी छुट्टियाँ घर के माहौल की नज़र हो गई थी, यहाँ तक कि वो इसबा को कहीं बाहर भी नहीं ले जा पाया था। मगर वो जानता था कि इसबा उसकी मजबूरी बखूबी समझती है। आफाक की नज़र इसबा के चेहरे पर छाए हुए तासुरात पर पड़ी। वो काफ़ी परेशान और उदास नज़र आ रही थी। इसबा यूं ही ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी चीज़ों की जगह तब्दील करने लगी। वो एक परफ्यूम उठाकर उसकी जगह दूसरे को रख देती तो दूसरे की जगह पहले को। उसकी इस हरकत से वाज़ेह था कि वह किस कदर परेशान है। इसबा, आफाक ने उसे पुकारा। वो पलटी। जी? उसकी आवाज़ भी रुंधी हुई थी। यकीनन वो रोकर कमरे में आई थी। सब ठीक है ना? आफाक के इस सवाल पर उसने नज़रें उठाते हुए उस जानिब देखा और नफ़ी में गर्दन हिलाते नज़रें झुका ली। इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो उसे अपने पास बुला रहा था। इसबा कदम उठाती उसके सामने जा बैठी। अब बताओ क्या बात है? मेरी अभी अम्मी से बात हुई थी। अम्मी की तबीयत कल रात से बहुत ख़राब है। सबरीना आंटी और फैज़ान ताया के मामले को लेकर वो बहुत परेशान है कि कहीं इस सब से आबरू का रिश्ता मुतासर न हो जाए। आंखों में मौजूद आंसू अब उसके रुखसार पर गिर रहे थे। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं इस बात को, मगर मामला अभी तक वहीं का वहीं है। ताशफीन भाई फैज़ान ताया की बात सुनने को तैयार नहीं है और फैज़ान ताया वो भी पीछे हटना नहीं चाहते। आबरू शादी के पहले दिन से परेशान है और अम्मी वो उस सब की वजह से बीमार हो गई हैं। वो अपने दिल का हाल उसे सुना रही थी। अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ। आफाक ने हाथ बढ़ाते उसके आंसू साफ किए। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करता हूँ मामू से। इस पर नम आंखें लिए आफाक को देख रही थी, जो उसके हाथ थामे उसे तसल्ली दे रहा था। अब उठो शाबाश और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। वो बेड से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जाना है? इसपा ने उसकी जानिब देखते हुए सवाल किया, जो अब दरवाजे के करीब पहुँच गया था। सानिया ममानी के पास। वो मुस्कुरा कर कहता हुआ दरवाज़ा अबूर कर गया। फैज़ान कदम उठाता है राबिया बेगम के कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे में दाखिल होते हैं राबिया बेगम उन्हें सामने ही बेड पर बैठी नजर आई। फैज़ान को दाखिल होते देखकर राबिया बेगम उनकी जानिब देखने लगी।
آپا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتے بولا۔ ہاں کہو، وہ اس کی جانب متوجہ تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ رابعہ بیگم حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، مگر خاموش رہی۔ یہ فیصلہ اچانک لیا گیا تھا۔ اس دن جب میں صبرینہ سے ملنے گیا تھا تو تاشفین نے مجھے اس سے ملنے نہیں دیا، مگر جب میں نے بعد میں اس بارے میں سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اگر صبرینہ سے مل بھی لیتا تو آخر اس سے کیا بات کرتا۔ ہمارے درمیان اتنے سالوں کی رنجی سے، شکوے اور گلوں کے سوا تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ فیضان کا ٹوٹا ہوا لہجہ اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ اتنے میں آفاق بھی کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس کو قصوروار سمجھتا رہا تو وہ مجھے اپنا مسلم سمجھتی رہی، اور یوں ہی ہماری زندگی کی قیمتی سال ضائع ہو گئے۔ ان کی ہر بات سچ تھی، تلخ حقیقت۔ میں مانتا ہوں کہ میرا قصور ہے، مجھے اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے حالات کیا تھے، میں کتنا مجبور تھا، آپ تو جانتی ہیں نا آپا۔ وہ ایک ایسا باپ تھا جس سے اس کی اولاد نفرت کرتی تھی، مگر اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں آپ سب کی زندگیوں سے دور چلا جاؤں۔ رابعہ بیگم فوراً بولنے لگی، فیضان میری بات سنو، دیکھو جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، یہاں سے جانا ہے تو اس مسئلے کا حل میں فیصلہ کر چکا ہوں آپا، اسی میں سب کی بہتری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں گی۔ وہ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ پاس بیٹھے آفاق کو آج فیضان کا لہجہ اذیت اور درد سے بھرا محسوس ہو رہا تھا۔ میں فاطمہ اور لائبہ کو لے کر واپس چلا جاؤں گا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ رابعہ بیگم نے ان کا ہاتھ تھاما۔ فیضان تم؟ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ پلیز آپا مت روئیں، ہمارے 2 دن بعد کی فلائٹ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں دوبارہ کبھی پاکستان واپس آؤں گا یا نہیں، مگر ہاں میں آپ کو اتنا یقین ضرور دلاتا ہوں کہ واپس جانے کے بعد میں آپ سے مسلسل رابطے میں رہوں گا۔ فیضان کی آواز بھی اب رون چکی تھی، آنسو اس کے حلق میں جمع ہونے لگے تھے۔ میری غلطیاں معافی کے قابل نہیں، مگر پھر بھی میں اپنی ہر غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ فیضان رابعہ بیگم کی جانب دیکھتا بولا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ نہیں فیضان، صرف تم قصوروار نہیں ہو، ہم سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ ان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فیضان کا فون بجنے لگا۔ ضروری کال ہے آپا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ آفاق تیزی سے اٹھتا ہوا رابعہ بیگم کے پاس آیا۔ خود کو اذیت مت دے امی، ماموں نے جو فیصلہ کیا ہے اسی میں سب کی بہتری ہے۔ وہ رابعہ بیگم کو ساتھ لگاتے بولا، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں آفاق، کاش میں اسے واپس ہی نہ بلاتی، وہ وہیں خوش رہتا، یہاں آ کر اسے کیا حاصل ہوا، صرف اذیت۔ اس کے ماضی کا ہر درد بھرا باب ایک بار پھر سے کھل گیا۔ خود کو الزام مت دے امی، یہ سب تو یوں ہی ہونا لکھا تھا، آپ بس ان کے لیے دعا کریں کہ وہ واپس جا کر دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ والدین کی زبردستی میں کیے گئے فیصلے اکثر اولاد کی زندگیاں یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ اپنی انا کی تسکین کی خاطر وہ اکثر اولاد کی خوشیوں کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بے قصور نہ صبرینہ تھی نہ فیضان، مگر وقت کی چکی میں پیسنے والے ذات بھی ان دونوں کی تھی۔ ایک نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوٹ کھائی تھی تو دوسرے نے دلیری کا مظاہرہ کرتے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ایک نے والدین کی فرما برداری کرتے اپنی خوشیاں گنوائی تھی تو دوسرے نے والدین کی نافرمانی کرتے۔ اگر صبرینہ کچھ وقت انتظار کرتے، وہ قدم نہ اٹھاتی، اپنے والدین کا بھروسہ نہ توڑتی، فیضان اس سے جھوٹے وعدے نہ کرتا، ایک رشتے میں بندنے کے بعد اس کے لیے ڈٹ جاتا، تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے۔ مگر قسمت میں لکھے فیصلوں کو آخر کون ٹال سکتا ہے؟ میں نفرتوں کے جہاں میں رہ کر جدا رہوں گا تو کیا کروں گا، یہ ٹھیک کہتے ہو، بے وفا ہوں، وفا کروں گا تو کیا کروں گا، بس ایک تو ہی تو رہ گیا ہے، جہاں سارا تو کھو چکا ہوں، تجھے بھی اپنی انا میں آ کر خفا کروں گا تو کیا کروں گا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ مکمل اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سڑک پر دوڑتی اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آفاق موجود تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر اسوا بیٹھی تھی۔ وہ صالحہ بیگم سے مل کر واپس آ رہے تھے۔ ان کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، اور ان سے ملنے کے بعد اب اسبا کی پریشانی بھی کم ہو چکی تھی۔ اسبا نے ایک نظر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس گاڑی چلاتے آفاق پر ڈالی۔ تھینک یو، گاڑی میں اسبا کی آواز گونجی۔ کس لیے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسبا کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے امی سے ملوانے لے گئے، میں بہت پریشان ہو گئی تھی کیا؟ اب کیا تم اتنی باتوں پر مجھے شکریہ ادا کرو گی؟ وہ ہنس پڑا، جبکہ دوسری جانب اسبا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی نے آفاق کو کچھ غلط ہونے کا اندیہ دیا کہ فوراً ذہن میں ایک خیال آیا۔ 1 منٹ، یعنی تمہیں یہ لگا کہ میں تمہیں تمہاری امی کے گھر نہیں لے کر جاؤں گا؟ اور وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ اسبا کے دماغ میں اس وقت
माजी के क्या चल रहे थे जब हफ्सा को घर वापस आने के लिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। आदिल और अपनी सास की मिन्नतें करते उसे सिर्फ 2 या 3 दिन की इजाज़तें मिलती। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि आफाक ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। वो होश में आते उसकी जानिब देखने लगी। इसबा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यही सोचे उसे हर वक्त खौफजदा की रखती थी। मेरी बात सुनो इसबा, ये कैसे कैसे वहम पाल कर बैठी हो तुम? अब मैं समझा हर वक्त तुम क्यों खौफजदा रहती हो। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए उससे बात कर रहा था, जिस पर इसबा की जानिब से मुसलसल खामोशी उसे शदीद परेशान कर रही थी। वो गाड़ी सड़क के एक साइड पर पार्क करते हुए उसकी जानिब मुड़ा। इसबा इधर देखो मेरी तरफ। इसबा ने नजरें उठाते उसकी जानिब देखा। उसकी आंखें हमेशा की तरह आंसू से लबरेज थीं। सबसे पहले तो रोना बंद करो, शाबाश। वो उसका हाथ थामते बोला, जिस पर इसबा ने दूसरे हाथ से अपने आंसू साफ किए। मुझे मालूम है कि तुम्हारे इस डर और खौफ की वजह क्या है, मगर यूं रोने से इस मसले का हल तो नहीं निकल आएगा ना। वो उसे समझाने लगा। उसकी नज़रें एक बार फिर झुक चुकी थी, जिस पर आफाक ने हाथ बढ़ाते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। अब नज़रें मत झुकाना। इसबा अब उसकी आंखों में देख रही थी। मैं जानता हूँ इन वसवसों और खौफ से निकलना इतना आसान नहीं, मगर मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हारे हर खौफ और वहम को जितना जल्दी हो सके दूर कर दूँ। मैं ऐसे मर्दों में नहीं हूँ जो शादी के बाद अपनी बीवी पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं। इसबा की आंखों में नमी कम होने लगी थी। तुम खुद मुझे बताओ, हमारी शादी को 2 हफ्ते हो गए हैं। क्या मैंने अब तक तुम्हें किसी चीज़ के लिए पाबंद किया है, किसी चीज़ से रोका है? इसबा ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर अब रोना बंद करो और आइंदा खामोश रहने के बजाय तुम अपने दिल में पैदा होते हर खौफ और वहम को मुझसे शेयर करोगी, ओके? इसबा ने इस्पात में सर हिलाया कि इतने में गाड़ी के शीशे पर होती दस्तक ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। आफाक ने गर्दन मोड़ते हुए उस जानिब देखा। एक छोटा बच्चा हाथ में गजरों वाली झड़ी थामे खड़ा था। कुछ देर बाद आफाक ने उससे 2 गजरे खरीदे, इसबा को थमाए और वॉलेट से पैसे निकालने लगा कि नज़र इसबा पर पड़ी जो गजरे पहन रही थी। रुको, मैं पहनाता हूँ। उसकी आवाज़ पर इसबा के हाथ थम गए। वह पैसे उस बच्चे को थमाते पलटा और गजरे इसबा के हाथ से लेते बारी बारी उसके हाथों में पहनाए। वो उसकी कलाइयों पर खूब जच रहे थे। आफाक ने उसके दोनों हाथ थामे, जिस पर इसबा ने उसकी जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली। मेरा तुमसे वादा है इसबा कि तुम्हारी आंखों में आने वाले आंसुओं की वजह कभी भी मेरी ज़ात नहीं होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। उसकी बात पर इसबा के लब मुस्कुराहट में ढले। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जिस पर आफाक मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत अच्छे हैं आफाक। शायद उस सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली थी। तुम भी बहुत अच्छी लगती हो जब इस तरह मुस्कुराती हो। मेरा मिशन है कि मुझे हर वक्त रोने वाली इसबा को एक मजबूत इसबा बनाना है, फिर चाहे। वो बात करते करते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। सड़क पर दौड़ती हुई उस गाड़ी में अब आफाक के बोलने की आवाज़ और इसबा की हंसी गूंज रही थी। वो हॉस्पिटल की राहदारी से गुजरता हुआ अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। शादी के बाद हॉस्पिटल आते हुए ये उसका दूसरा दिन था। वो घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। उस दिन के बाद फैज़ान की जानिब से कोई पेशकदमी नहीं की गई थी। ऑफिस में दाखिल होते वो टेबल तक गया। वो वार्ड के राउंड पर जाने से पहले अपना मोबाइल यहीं भूल गया था। कुर्सी पर बैठते उसने अपना मोबाइल उठाया। आबरू के 2 मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर जगमगा रहा था। इससे पहले कि वो उसे कॉल बैक करता, दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए। वो मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते बोला। उसकी इजाज़त देने पर कोई अंदर दाखिल हुआ। ताशफिर ने नजरें उठाते उस जानिब देखा। सामने फैज़ान खड़ा था। वो फ़ौरन अपनी कुर्सी छोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि दूसरी जानिब खड़े फैज़ान को याद आया कि जब पहली बार उससे यही मिलने आया था तो उसे देखकर उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि काश उसका भी ताशफिर जैसा कोई बेटा होता। ख्वाहिश तो पूरी हो गई थी, मगर हालात ने साथ छोड़ दिया था। आप यहाँ? ताशफिर के लहजे में आज गुस्सा नहीं, सिर्फ हैरत थी। उसे फैज़ान के यहाँ आने की तवक्को नहीं थी। फैज़ान कदम उठाता उस जानिब आया। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा बेटा, बस एक आखिरी बार तुमसे बात करना चाहता हूँ। फैज़ान ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोला। ताशफिर खामोश रहा। तुमने सही कहा था, मैं बुज़दिल हूँ और बुज़दिल मर्दों को मोहब्बत करने का कोई हक़ नहीं होता। वो ताशफिर की बात दोहराते बोले। ताशफिर ने उनकी पूरी आंखों में देखा, जहाँ आज सिर्फ मलाल था। मैं ही तुम्हारा और तुम्हारी माँ का कसूरवार हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शदीद नफरत करते हो और वाकई मैं इस नफरत का हकदार हूँ। फैज़ान की आवाज़ रुंधने लगी थी, जबकि सामने खड़ा ताशफिर इस हारे हुए शख्स को देख रहा था। मैं ज़िंदगी भर तुम्हें कुछ नहीं दे सका सिवाय गम और तकलीफ़ के, इसलिए मैं तुम्हारी वाहिद ख्वाहिश जो उस दिन तुमने मुझसे की थी
उसे पूरा करने जा रहा हूँ। वो रुके। ताशफिन के दिल की धड़कन एकदम तेज हुई। मैं हमेशा के लिए तुम लोगों की ज़िंदगी से दूर जा रहा हूँ। न जाने क्यों, पर इस खबर पर ताशफिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को जोर से मुट्ठी में दबाया हो। कुछ लम्हे एक खामोशी उन दोनों के दरमियान हायल हो गई। कुछ तो कहो ताशफिन, आज तुम्हारा बाप आखिरी बार तुमसे मिलने आया है। ताशफिन के पास आज अल्फाज ख़त्म हो गए थे। उस वक्त कुछ भी बोलना उसे बेहद मुश्किल लगा। जो वो चाहता था वो होने जा रहा था, तो फिर उसे इस फैसले से तकलीफ़ क्यों हो रही थी? वो हिम्मत करता बोलने लगा। आपने एक बेहतरीन फ़ैसला लिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपनी एक औलाद को तो आप खो चुके हैं, दूसरी को मत खोएं। एक अच्छे बाप बनकर दिखाइएगा। उसके अल्फाज उसकी धड़कनों की तरह बेरब थे। फैज़ान मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि मेरा जुर्म माफ़ी के काबिल नहीं, मगर फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और अपनी माँ से कहना कि मैं वाकई उसके काबिल नहीं था। मैं उसका मुजरिम हूँ, उसकी ज़िंदगी में आई हर तकलीफ़ की वजह। पर उसके कहना कि अगर हो सके तो वो भी मुझे माफ़ कर दे। एक आंसू फैज़ान की आंख से निकलते उनके चेहरे पर आ गिरा, जिसे साफ करते वो दोबारा गोया हुए। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है बेटा, तो क्या तुम भी मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? ताशफिन ने सवाली नज़रों से उसकी जानिब देखा। उस दिन बोलने की बारी ताशफिन की थी, मगर आज ये बाजी फैज़ान ले गया। एक बार मुझे पापा कहकर पुकारो। ताशफिन को लगा वो अपना शब्द खो देगा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो खुद पर काबू खोने लगा था। वो एक कैसे इम्तिहान में फंस चुका था। उसे खामोश देखते फैज़ान बोलने लगा, अपना और सबरीना का ख्याल रखना बेटा, खुदा हाफिज़। वो वापस जाने के लिए पलटा और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए थे कि समाज से ताशफिन की आवाज़ टकराई। अपनी माँ के हवाले से मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, मगर हाँ, मैंने आपको अपनी हर गलती के लिए माफ़ किया बाबा। फैज़ान ने पलटकर उसकी जानिब देखा और नम आंखों से मुस्कुराते हुए दरवाज़ा अबूर कर गया, क्योंकि वहाँ रुकना अब उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। उनके जाने के बाद ताशफिन अपनी कुर्सी पर ढह गया। अपनी उम्र का एक हिस्सा वो जिस इंसान के लिए तरसता रहा था, वो आज वापस जा रहा था। मगर ज़्यादा तकलीफ़ दे बात तो ये थी कि उसे भेजने वाला भी वो खुद था। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि वो जाकर अपने बाप के गले लग जाए। ये उनके दरमियान रिश्ता था जो अब उसे कमज़ोर बना रहा था, मगर ऐसा करने से उसकी माँ का काविशों, उसकी ममता की हार हो जाती। वो शख्स उसकी माँ का मुजरिम था, उसकी ज़िंदगी की हर असियत की वजह, और वो किसी सूरत अपनी माँ को हरा नहीं सकता था। माँ और बाप के इंतखाब में उसने अपनी माँ को चुना था, जिसका इंतखाब करना उसका फ़र्ज़ था। एक आंसू उसकी आंख से निकला, उसके चेहरे पर आ गिरा था। ये बाप की मोहब्बत में निकला पहला और आखिरी आंसू था, जिसे साफ करते वो आंखें बंद किए वहीं बैठ गया। वो हॉस्पिटल से आते सीधा अपने कमरे में गया। उसके दिमाग में अब तक फैज़ान की बातें गूंज रही थी। कुछ देर वो यूं ही बैठा रहा और फिर कदम उठाते फ्रेश होने चला गया। आबरू उस वक्त सबरीना के साथ उनके कमरे में बैठी थी, जबकि ज़ावियार नूर को यूनिवर्सिटी से वापस लेने गया था। फ्रेश होकर अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। सुरमई ट्राउज़र के साथ सफ़ेद शर्ट पहने वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आया कि उसने आबरू की गैर मौजूदगी महसूस की। वो बाल सेट करते हुए कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतरते नीचे सबरीना के कमरे की जानिब चल पड़ा कि दाखिल होते ही उसकी नज़र सबरीना पर पड़ी, जो आबरू के साथ बैठी। आबरू की पुश्त ताशफिन की जानिब थी। सबरीना की नज़र ताशफिन पर पड़ते वो बोल पड़ी, ताशफिन बेटा। आबरू पलटी। तुम कब आए? वो उनके पास आकर बैठ गया। अभी, जब आप अपनी बहू के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी। उसने मुस्कुराते हुए आबरू की जानिब देखा, जो हल्के पीले रंग की कमीज़ के साथ हम रंग पजामा पहने सबरीना के सामने बैठी थी। बातें नहीं, शिकायतें कहो। आबरू मुझसे तुम्हारी शिकायतें कर रही थी। सबरीना हंसते हुए बोली। वो आज काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही थी। क्या वाकई? ताशफिन ने आबरू की जानिब देखते पूछा, जो नफीमा से हिलाते हुए अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। मेरी बीवी आपसे मेरी शिकायतें करे? नामुमकिन। ताशफिन फ़ख्रे अंदाज में सबरीना की जानिब देखता बोला, जिसके जवाब में वो मज़ीद कुछ कह रही थी। कुछ देर वो यूं ही साथ बैठे बातें करते रहे कि एकदम सबरीना को कुछ याद आया। ताशफिन, मैं कल भी तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी, मगर फिर वक्त ना मिल सका। जी अम्मू जान, कहें। ताशफिन उनकी जानिब देखता बोला, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है बेटा। आबरू को कहीं बाहर ले जाओ, घूमो फिरो। तुम्हें खुद तो ख्याल नहीं आया, मैंने सोचा मैं ही याद दिला दूं कि तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। वो खफकी से ताशफिन की तरफ देखते हुए कह रही थी, मैं जानती हूँ कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, मेरी वजह से तुम दोनों के इतने अहम दिन बर्बाद हो गए। अम्मू जान, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, जो होना था वो हो गया। अब आप प्लीज़ सब भूल जाएं।
बार बार इस बारे में ना सोचें। ताशफिन उनके हाथ पर हाथ रखता बोला। ताशफिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी, जो हुआ है उसके लिए खुद को इल्ज़ाम मत दें। हर बुरी सोच को अपने जहन से निकाल दें और बस अपना ख्याल रखें। हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। आबरू ने मुस्कुराते हुए सबरीना के हाथ पर रखते हुए ताशफिन के हाथ पर अपना हाथ रखा, जिस पर सबरीना अपना दूसरा हाथ आबरू के हाथ पर रखते मुस्कुराई। चले अम्मूजान, अब तो आपकी बहू ने भी कह दिया है, अब तो मान जाएं। ताशफिन की बात पर सबरीना बोलने लगी। एक शर्त पर कि आज तुम आबरू को लेकर कहीं बाहर जाओगे, इसे शॉपिंग करवाओगे और किसी अच्छी सी जगह पर डिनर करवाओगे। सबरीना की बात पर ताशफिन ने एक नज़र आबरू की जानिब देखा। राजर बॉस, उसने हाथ माथे तक ले जाते हुए जवाब दिया। बेड पर बैग को रखे वो उस वक्त पैकिंग में मसरूफ़ था, साथ ही कान को फ़ोन लगा रखा था। हाँ यार, कल की फ़्लाइट है। उसे अपनी कंपनी संभालते हुए एक हफ्ता गुजर गया था। कॉल की दूसरी जानिब फवाद था। अच्छा यार, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी ज़रा बैग पैक कर लूँ। वो कॉल काटते फ़ोन साइड टेबल पर रख चुका था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि फ़ायका लाशारी कमरे में दाखिल हुई। उसे सामान पैक करते हुए देखकर उन्होंने उसे मुखातिब किया। कहाँ की तैयारी है? कराची जाना है। मुख्तसर जवाब। सब खैरियत? एक और सवाल। जी बस कुछ बिजनेस इशूज़ हैं। एक बार फिर मुख्तसर जवाब, जिस पर फ़ायका को रात में फयाज से हुई बात याद आई थी। फयाज भी कराची ही जा रहे हैं तो क्या? जी उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। फ़ायका बेगम की हैरत में इजाफा हुआ। मगर रात को फयाज ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम भी साथ जा रहे हो। शिकवा फ़ौरन जबान पर आया। भूल गए होंगे, और वैसे भी कल ही फैसला हुआ है कि मैं भी साथ जाऊँगा। वो सुरमई शर्ट बैग में रखते हुए बोला। और शहरियार? एक और सवाल। वो यहीं रहेगा, यहाँ के मामला देखेगा? फ़ायका बेगम के दिमाग पर बस एक ही सोच का राज था कि आखिर फयाज हर मामले में शाहज़ैन को शहरियार पर फोकियत क्यों दे रहे थे, जबकि वो इस बात को फरामोश कर रही थी कि बड़ा बेटा होने की हैसियत से ये सब उसका पहला हक है। वो भूल रही थी कि शाहज़ैन उनका अपना खून नहीं है। ये बात सिर्फ फ़ायका बेगम ही जानती थी, फयाज लाशारी नहीं। कितने दिन के लिए जाना है? एक बार फिर सवाल करने लगी। डेढ़ तो 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, पर मुझे शायद काफ़ी वक्त लग जाए। उसने सियाह शूज़ का डब्बे उठाते हुए बैग में रखा। कितना वक्त? फ़ायका बेगम सवाल पर सवाल कर रही थी। शायद 2 या 3 माह। वो अब बैग को जिप बंद कर रहा था। इतना वक्त क्यों? पहले तो कुछ अहम मीटिंग्स हैं, फिर डैड का इरादा है कि वो वहाँ पर एक और ब्रांच का आगाज़ किया जाए, ताकि कराची में भी हमारे 2 से ज़्यादा ब्रांच हो जाए। वो बैग बेड से उतार कर नीचे रख रहा था। और तुम्हारा यहाँ वाला काम, मेरा मतलब तुम्हारी अपनी ब्रांच कौन देखेगा? फ़ायका बेगम उससे हर बात सुनना चाहती थी जो फयाज लाशारी उन्हें नहीं बताते थे। मेरी गैर मौजूदगी में डैड उसे खुद देखेंगे। और बात मुकम्मल होने से पहले फ़ोन की आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। हाथ बढ़ाते हुए टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाते वो कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि फ़ायका लाशारी को इस वक्त फयाज लाशारी पर सख्त गुस्सा था कि आखिर वो क्यों उन्हें बिजनेस के मामलों से बेखबर रखते थे। गाड़ी से उतरते वो दोनों साथ कदम उठाते हुए उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। शॉपिंग का प्लान वो कुछ दिन बाद के लिए छोड़ते आज डिनर के लिए आए थे। ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। टेबल की बुकिंग ताशफिन शाम को ही करवा चुका था। अंदर दाखिल होते ही ताशफिन आगे बढ़ते रिसेप्शन पर बात करने लगा, जिस पर कुछ देर बाद वो एक वेटर के हमरा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आए। ग्लास वॉल के साथ एक कोने में मौजूद टेबल ताशफिन ने बुक करवाया था। वेटर उन्हें वहाँ छोड़ते हुए चला गया, जबकि आबरू की नज़र सामने मौजूद टेबल पर पड़ी। छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मौजूद गुलाब के फूलों से सजा टेबल, जिसके बीच में सुर्ख गुलाबों का एक बुके पड़ा था। हल्की हल्की लाइटिंग से आसपास रखी चीज़ों को सजाया गया था, जबकि ग्लास वॉल से शहर की नज़र आती रोशनियाँ मंजर वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। खासकर वहाँ उसका मुंतज़िर खड़ा वो शख्स, जिसकी मौजूदगी से अब हर मंजर आबरू को खूबसूरत लगता था। आबरू कदम उठाती हुई आगे गई। वो आज लॉन्ग सिया फ्रॉक के साथ हमरंग दुपट्टा में मौजूद थी, जिस पर सुनहरे रंग के मोतियों का खूबसूरत काम हुआ था। बालों को जूड़े में बांध रखा था, जबकि हल्की सी ज्वेलरी के साथ हल्का सा मेकअप उसे बहुत दिलकश बना रहा था। सामने खड़ा ताशफिन भी सिया पैंट कोट पहने बेहद खूबरू और वजीहा लग रहा था। टेबल के करीब पहुंचते ताशफिन ने उसके लिए कुर्सी पीछे करते उसे बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। सामने बड़ा बुके उठाते उसने आबरू की जानिब बढ़ाया, जिसे एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ आबरू ने थाम लिया कि अब ताशफिन अपने कोट की पॉकेट में कुछ तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद वो एक सिया रंग की डिब्बिया निकालने में कामयाब हुआ
और उसे टेबल पर आबरू के सामने रखा। आबरू ने बुके साइड पर रखते हुए वो डिबिया खोली। वो एक खूबसूरत ब्रेसलेट था जिसके दरमियान में अंग्रेजी के 2 हर्फ गुंदे थे, ए और टी। आबरू ने उसे डिबिया से निकाला और हाथ में थामते ताशफिन की जानिब देखा। उसकी नज़रों में खुशी और तशक्कुर का एहसास वो महसूस कर सकता था। मैं आई? ब्रेसलेट की जानिब हाथ बढ़ाते हुए उसने आबरू से इजाज़त चाही, जिस पर आबरू ने ब्रेसलेट उसकी जानिब बढ़ाया और अपनी दाएं कलाई उसके सामने की, जिसमें अब ताशफिन वो ब्रेसलेट पहना रहा था। तो फिर कैसा लगा सब? ताशफिन ने आसपास निगाह दौड़ाते हुए आबरू से सवाल किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब चीज़ें एक दिन मुझे भी इतनी अच्छी लगेंगी। वो रुकी। थैंक यू सो मच। वो वाकई बहुत खुश थी, उसे इन सब चीज़ों की तवक्को नहीं थी। माय प्लेजर मैम, वो मुस्कुराते हुए बोला। कुछ देर बाद वो वेटर को अपना ऑर्डर दे चुके थे। मैं जानता हूँ आबरू कि मैं पिछले दिनों आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे सका। मामला ही कुछ ऐसा था कि मैं मजबूरन हो गया था, मगर अब सब ठीक हो गया है। हम दोनों साथ हैं और खुश हैं। वो आबरू की जानिब देखते हुए बोला। अब हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे जिसमें माजी की कोई तल्ख याद असरअंदाज नहीं हो पाएगी। सिर्फ हमारा हाल होगा और मुस्तकबिल के ख्वाब। वो आबरू का हाथ थामते हुए बोला, जिस पर आबरू ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जो हुआ उससे आपको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं उसके लिए आपसे माजरत। ताशफिन, ऐसी बातें मत करें प्लीज़। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मैं आपके लिए और आंटी के लिए बहुत फिक्रमंद थी। रही बात मेरी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के मराहिल का सामना किया है, हर तरह की परेशानी झेली है। बेबसी, मजबूरी, इन सब कैफियत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। उसकी आवाज़ और अल्फाज में पोशीदा अज़ियत ताशफिन महसूस कर सकता था। ज़्यादा तो नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी बीवी ने इन सब हालात का सामना बहुत मजबूती और बहादुरी से किया होगा। वो उसकी तकलीफ़ कम करना चाहता था। आपको एक बात बताऊँ, ये जो मजबूत लोग होते हैं ना, ये अंदर से बहुत खाली, अकेले और टूटे हुए होते हैं, मगर वो ये सब बातें किसी और के सामने नहीं कह सकते कि कहीं उनका भरम न टूट जाए। वो अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने 2 अजीज़ तरीन रिश्ते खोए हैं। बाबा के इंतकाल के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। हर चीज़ के लिए दूसरों की मोहताजी, बेबसी हमारी मजबूरी बन गई थी। और इन सब हालात में मुझे अपने मजबूत होने का भरम रखना था, अपने घर वालों को संभालना था। मगर इस सब में मेरे अंदर की वो आबरू बिल्कुल तन्हा रह गई, क्योंकि शायद लोगों के मुताबिक मजबूत लोगों को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। उसकी आवाज़ में नमी घुलने लगी थी। ताशफिन ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। जो गुजर गया है उसे भूल जाएं आबरू, मगर आज से आप मुझे हमेशा, हर दिन, हर लम्हा, हर पल, हर घड़ी अपने साथ पाएंगी। आबरू नम आंखों से मुस्कुराई। आपका साथ मुझे मौत पर बनाता है ताशफिन। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा हमसफ़र नसीब हुआ। वो दिल से मुस्कुराते हुए बोली। बेशक, मुझे मेरे खुदा ने बदतरीन से निकाल कर बेहतरीन से नवाजा है। उसकी बात पर ताशफिन मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या मैं इसे इजहार मोहब्बत समझूं? आबरू हंसने लगी, जिससे उसके गाल में डिम्पल पड़ने लगे थे, जो बहुत कम ही दिखाई देते थे, और वजह उसका कम मुस्कुराना था। मुझे मोहब्बत जैसे जज्बे पर यकीन और एतबार तो नहीं, मगर हो सकता है कि आपके साथ रहते ही रहते मुझे इस जज्बे पर एतबार और पुख्ता यकीन हो जाए और मैं भी इस जज्बे की कायल हो जाऊं। आज मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी, और वजह सामने बैठा वो शख्स था। यानी अभी मुझे कुछ वक्त मज़ीद इंतज़ार करना होगा और कुछ मेहनत भी करनी होगी वकील साहिबा को मोहब्बत पर यकीन दिलाने के लिए। ताशफिन के बोलने पर वो हंसने लगी। जी डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी सी मज़ीद कोशिश करनी होगी। उसके जवाब पर वो भी हंसने लगा। ज़िंदगी अब पुरसुकून और खुशगवार लगने लगी थी। 3 माह बाद आसमान पर हर जानिब बादल छाए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा मौसम को खुशगवार बना रही थी। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। आसमानी रंग की लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहने वो अलमारी के सामने खड़ी थी। उन 3 माह में वो कमरे की सेटिंग को दोबारा बदल चुकी थी। कभी किसी चीज़ को उठाकर कहीं रख देती तो कभी किसी को, और आज भी अफ़ाक की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए वो यही काम करने में मसरूफ़ थी। गुजरे 3 माह उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। अफ़ाक ने अपना किया हर वादा निभाया था। वो अब हर बात पर रोने वाली इसबा नहीं रही थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुलकर अपनी मर्ज़ी से जीने वाली इसबा बन चुकी थी। बेड पर बिखरे कपड़े वापस अलमारी में रखते हुए उसने पलटकर कमरे में दाखिल होते हुए अफ़ाक की जानिब देखा। सिया ट्राउज़र के साथ सफ़ेद शर्ट पहने वो उसी जानिब आ रहा था। इसबा की नज़र उसके हाथ पर मौजूद फ्रेम पर पड़ी थी, जो उसने अपने पीछे छुपा रखा था। आंखें बंद करो,
اس کے سامنے آتے آفاق مسکراتے ہوئے بولا، جس پر اسبا نے تابعداری سے فوراً آنکھیں بند کی۔ آفاق نے وہ فریم اس کے سامنے کیا، ایک نگاہ اس کی بند آنکھوں پر ڈالتے ہوئے وہ بولا، اب آنکھیں کھولو۔ فوراً آنکھیں کھولتے اسبا کی نظر سب سے پہلے آفاق کے مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑی اور پھر اس فریم پر۔ وہ ان کی شادی کی ایک بہت خوبصورت تصویر تھی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اسبا کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ فریم اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اچھی ہے نا؟ آفاق نے سوال کیا۔ بہت، اس کا لہجہ اس کی خوشی کا ظاہر کر رہا تھا۔ پر یہ آپ نے کب؟ کافی دیر پہلے آرڈر کیا تھا، مگر آتے آتے دیر ہو گئی۔ وہ اس کا سوال سمجھتے جواب دینے لگا، چلو آؤ اسے لگاتے ہیں۔ وہ فریم اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولا اور آس پاس دیوار کی جانب دیکھنے لگا کہ اس کی نظر سے اسبا کو اندازہ ہوا کہ آفاق دیوار پر لگی اپنی تصویر کو ہٹاتے اس کی جگہ یہ فریم لگانے والا تھا۔ آفاق فریم اٹھاتے اس جانب چل پڑا کہ اسبا اس کے پیچھے آئی۔ اس نے تصویر اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسبا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اسے کیوں اتار رہے ہیں آپ؟ اس کے سوال پر وہ پلٹا۔ تاکہ اس کی جگہ وہ فریم لگا سکوں۔ وہ دوبارہ تصویر کی جانب دیکھنے لگا۔ نہیں، آپ اسے مت اتاریں، اسے یہیں رہنے دیں۔ اسبا دوبارہ بولی۔ کیوں؟ سوال فوراً آیا۔ کیونکہ یہ مجھے یہاں بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے آپ وہ فریم کہیں اور لگائیں۔ وہ خفگی سے بولی۔ اس سے غصہ آیا کہ وہ اس کی بات ایک ہی بار میں کیوں نہیں مان رہا تھا، جس پر آفاق اس کی بات سمجھتے ہنستے ہوئے بولا، واہ بھائی واہ۔ وہ اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کی ہر عادت اب بخوبی سمجھنے لگا تھا۔ آفاق، اس کے ہنسنے پر وہ خفگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ آفاق فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے پیچھے ہٹا، جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ اسبا کا ساتھ اس کی زندگی کو بھی بہت خوبصورت بنا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس تصویر کے ساتھ ہی اس فریم کو لگا چکے تھے۔ آفاق، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ تصویر البم میں تو نہیں تھی؟ اسبا اس کے فریم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہ البم میں نہیں تھی، میرے موبائل میں تھی، محمل لے رہی تھی یہ تصویر۔ وہ ابھی بھی اس فریم کو سیٹ کر رہا تھا۔ رکو دکھاتا ہوں، ذرا میرا موبائل پکڑانا۔ وہ بیڈ کی جانب آتا بولا، جبکہ اسبا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھاتے اس کے ساتھ جا بیٹھی اور موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ لوگ کھولو۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ پاس ورڈ تو بتائیں۔ اسبا کی آواز پر اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، چلو آج تو میرے موبائل کا پاس ورڈ گیس کرو۔ اس نے پانی پیتے ہوئے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا۔ ایسے کیسے گیس کر سکتی ہوں میں؟ کوئی ہنٹ تو دیں۔ اسبا اپنا رخ اس کی جانب کرتے بولی۔ اب وہ بیڈ پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ 5 الفابیٹس۔ اس کے کہنے پر اسبا نے کچھ لمحے سوچا اور پھر ٹائپ کرنے لگی۔ وہ آفاق کا نام لکھ رہی تھی۔ ارے میرا نام نہیں، آفاق فوراً بولا۔ اسبا نے سوالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کسی ایسے انسان کا نام جو میرے لیے بہت خاص ہے۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے پر نظر جمائے بولا، جس پر اسبا کچھ لمحے سوچتی رہی اور پھر رابعہ ٹائپ کرنے لگی، مگر یہ پاس ورڈ بھی غلط تھا۔ کچھ دیر مزید سوچتے ہوئے وہ آفاق کی جانب دیکھتے بولی، محمل کے تو 6 لیٹرز ہیں۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اور تمہارے نام کیا؟ آفاق کے بولنے پر وہ ٹھٹکی اور آفاق کی جانب دیکھا جو تب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹائپ کرو۔ آفاق کے کہنے پر اس نے اپنا نام ٹائپ کیا اور فوراً لاک کھل گیا۔ ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تبسم کے ساتھ اس نے موبائل آفاق کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے آفاق کی نظر اس کے رخسار پر پڑی جو گلابی ہو چکے تھے، جبکہ اسبا کے کانوں میں آفاق کی بات گونجی، اس انسان کا نام جو میرے لیے بہت خاص ہے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی گردن جھکاتے ہوئے مسکراتی رہی کہ آفاق اسے مخاطب کرتے موبائل میں وہ تصویر دکھانے لگا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی سامنے ٹیبل پر پڑی فائل میں درج تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ آج ایک اہم کیس کی پہلی پیشی تھی جس میں معاملہ کچھ خاص آگے نہیں بڑھا پایا تھا اور اگلی تاریخ دے دی گئی تھی۔ فائل کو ایک جانب رکھتے اس نے اپنا فون اٹھایا اور صالح بیگم کو کال ملائی۔ کچھ دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم امی، دوسری جانب سے صالح بیگم بولنے لگی۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تقریباً 15 منٹ وہ ان سے بات کرتی رہی اور پھر فون کاٹتے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھا جہاں 10 منٹ پہلے آئی میسیج کا نوٹیفیکیشن موجود تھا۔ اسے کال کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ میسیج تاشفین کا تھا۔ آپ فری ہو گئی آبرو؟ آبرو نے فوراً جواب ٹائپ کیا، جی میں فری ہوں، پر کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ اس بار بھی جواب میں کال کرنے کے بجائے تاشفین ٹائپ کرنے لگا، جی جی سب خیریت ہے، آپ باہر آ جائیں، آئی ایم ویٹنگ۔ آبرو کی خوشگوار حیرت ہوئی تھی، مگر وہ مزید کچھ ٹائپ کرنے کے بجائے اپنا بیگ اور کچھ فائلز اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ دماغ میں گزرے دنوں کی یادیں تازہ ہونے لگی تھیں۔
उसे याद था कि जब शादी के बाद वो पहली बार कोर्ट आई थी तो ताशफिन उसे खुद कोर्ट छोड़ने आया था, वापसी पर लेने आया था, और तब से वो उसे अपना मामूल बना चुका था। जब कभी मसरूफियत की वजह से वो न आ पाता तो उसे छोड़ने और वापस ले जाने की जिम्मेदारी जावियर की होती। वो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले लोगों में से था। वो पार्किंग एरिया में आई तो वो उसे सामने ही खड़ा नजर आया। सियाह ड्रेस पैंट के साथ ही हल्के नीले रंग की शर्ट पहने वो उसका मुंतजर था। आसपास नजर दौड़ाते हुए उसकी नज़र सामने से आती हुई आबरू पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली, होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में डले। आपकी ड्यूटी कब ऑफ हुई ताशफिन? उसके करीब पहुंचते आबरू पूछने लगी। वो 36 घंटे की ड्यूटी ऑफ करते हुए अब घर जा रहा था। 2 घंटे पहले। थकावट उसके लहजे और चेहरे से वाज़ेह थी। तो आप इस वक्त घर क्यों नहीं गए? वो उसके सामने खड़ी इस्तफसार कर रही थी। मैंने सोचा जाते हुए अपनी बीवी को भी साथ घर ले जाऊं। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं जावी के साथ आ जाती ताशफिन, आप पहले ही इतने थके हुए हैं और ऊपर से मेरा इतना इंतज़ार करना पड़ा आपको। वो उसके लिए फिक्रमंद थी। उसकी आंखों से वाज़ेह था कि वो कल पूरी रात जागता रहा है। थका हुआ था मगर अब थकावट कुछ कम हो गई है। आओ बैठो। वो उसकी जानिब देखते मुस्कुराया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसे बैठने का इशारा किया। अम्माजान सही कहती हैं, आपको अपना ज़रा ख्याल नहीं है। और रुके, गाड़ी मैं चलाऊंगी, आप बैठें। वो उसे रोकते हुए बोली जो ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ रहा था। पिछले 1 माह से वो उसे ड्राइविंग सिखा रहा था। ओके मैडम। आबरू की बात पर उसने गाड़ी की चाबी आबरू की जानिब बढ़ाई, जिसे थामते अब वो ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ रही थी। सड़क पर दौड़ती गाड़ी में बैठे वो दोनों बातें करते घर की जानिब सफ़र तय कर रहे थे। मोबाइल डैशबोर्ड पर रखते ताशफिन ने अपना सर सीट की पुष्ट से टिकाया। कुछ देर बाद ताशफिन की जानिब से मुकम्मल खामोशी को महसूस करते आबरू ने उस जानिब देखा। वो सो चुका था। एक आसूदा मुस्कुराहट ने आबरू के लबों को छुआ। वो इतनी थकावट के बावजूद भी उसे लेने आया था। वो हर बार अपने अमल से आबरू का दिल जीत लेता था। वो उसकी कर्जदार होती जा रही थी। उन 3 माह में उसने अपनी कही हर बात पूरी कर दिखाई थी। वो उसके घर वालों को अपना खानदान सिर्फ कहता नहीं था, समझता भी था। अपने घर वालों के लिए नया घर खरीदकर उन्हें इसमें शिफ्ट करने का मुश्किल तरीन काम ताशफिन की बदौलत बहुत आसान हो गया था। वो उसकी हर मुश्किल को आसान बना देता। रुतबा की डिग्री मुकम्मल होने में सिर्फ 2 माह बाकी थे, जबकि ताशफिन पहले ही उसके लिए जॉब का इंतजाम कर चुका था। आबरू ने हाथ आगे बढ़ाते उसके माथे पर बिखरे बाल दुरुस्त किए। वो गहरी नींद में था, वजह शदीद थकावट थी। आबरू ने सामने देखते गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द घर पहुंचकर ताशफिन आराम कर सके। फवाद आज शाहज़ैन से मिलने उसके घर आया था। वो दोनों शाहज़ैन के कमरे में बैठे थे। 2 हफ्तों का कहकर महीने लगा दिए, ऐसा भी क्या काम था वहाँ? फवाद के सवाल पर सामने बैठा शाहज़ैन मुस्कुराया। बस यार क्या बताऊँ, पहले मीटिंग्स, फिर नई ब्रांच की कंस्ट्रक्शन का काम और आखिर में नया कॉन्ट्रैक्ट। शदीद मसरूफ़ रहा हूँ मैं इन 3 माह में, शाहज़ैन वजाहत देते हुए बोला, जबकि नज़र सामने टेबल पर पड़े लाइटर पर थी। वो अब फवाद के सामने सिगरेट पीने से इस तरह बरतता था। पर इंसान एक फ़ोन कॉल तो कर ही सकता है ना, और अगर खुद नहीं करनी थी तो मेरी कॉल्स ही रिसीव कर लेते। लहजे में शिकवा था। शाहज़ैन अक्सर उसके साथ यूं ही करता था क्योंकि उसका मोबाइल अक्सर साइलेंट पर रहता था। अच्छा यार, अब ये गिले छोड़ो और ये बताओ क्या, बल्कि मैं तो भूल ही गया कि अब तो तुम एक बड़ी कंपनी के मालिक हो। मसरूफियात से 2-4 तुम्हारी नज़र में अब मेरी क्या ही अहमियत रह गई होगी? वो उसकी बात काटते बोला। लहजे में उस बार खफगी के साथ शरारत भी थी। इससे पहले कि शाहज़ैन कुछ कहता, फवाद की नज़र कुछ फासले पर रखी एस्ट्रे पर पड़ी थी जिसमें मौजूद राख ताज़ा थी। तुम बाज नहीं आए ना शाहज़ैन, तुम्हें समझाया भी था कि सिगरेट छोड़ दो यार। फवाद की इस बात पर शाहज़ैन की नज़र भी उसकी एस्ट्रे पर पड़ी। डॉक्टर के पास गए थे दोबारा? फवाद ने सवाल किया। ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। और जो टेस्ट दिए थे डॉक्टर्स ने, उसके रिपोर्ट्स दिखाना ज़रा। शाहज़ैन के चेहरे का रंग बदला मगर वो अपने तासुरात पर काबू पाता हुआ बोला, क्या हो गया है फवाद? बताया तो था कि रिपोर्ट्स क्लियर हैं, तुम खामोखा ही में इतने परेशान ले रहे हो। अब छोड़ भी दो इस बात को। वो मौजू बदलना चाहता था। मगर शाहज़ैन, मामला यूं ही छोड़ने वाला नहीं है। तुम प्लीज़ फवाद, मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मैं वाकई बिल्कुल ठीक हूँ। उसने फवाद से ज़्यादा खुद को यकीन दिलवाया। ओके ओके। उसके लहजे में गुस्सा महसूस करते फवाद ने बात ख़त्म कर दी, जबकि दूसरी जानिब बैठा शाहज़ैन उस हकीकत को फरामोश कर देना चाहता था और उसकी ख्वाहिश थी कि फवाद भी उस बात को भूल जाए। ताशफिन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रहा था।
सफ़ेद शर्ट का कॉलर दुरुस्त करते उसकी नज़र कमरे में दाखिल होती हुई आबरू पर पड़ी। आज कोर्ट नहीं जाना? उसे ऑफिस के लिए तैयार न होता देखकर ताजफिन ने उसे मुखातिब किया, जिस पर आबरू ने नफी में सर हिलाते उसके पास आई। नहीं, आज छुट्टी ली है, मुख्तसर जवाब देते वो बेड पर पड़ा हुआ उसका कोट दुरुस्त करने लगी। खैरियत? ताजफिन उसकी जानी पलटा। जी, आज अम्मू जान अम्मी की तरफ जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ चली जाऊँ। काफ़ी देर हो गई है अम्मी से मिले। बाकी सब की तरह अब वो भी सबरीना को अम्मू जान कहने लगी थी। सही। वो ड्रेसिंग टेबल का दराज खोलते कुछ ढूंढने में मसरूफ़ था। उसे किसी चीज़ का मतलासी देखकर आबरू उसके पास आई। क्या ढूंढ रहे हैं आप? तकरीबन 2 ही सेकंड बाद वो समझ गई थी कि वो क्या ढूंढ रहा है। वो उसकी मतलूबा चीज़ दूसरे दराज से निकालने लगी। मेरी वो घड़ी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले आबरू वो घड़ी लिए उसके सामने खड़ी थी। ये ढूंढ रहे थे आप? उसके सवाल पर ताजफिन ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर लाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर आबरू उसे घड़ी पहनाने लगी। अब वो भी बिना गए उसकी बातें समझ जाती थी। घड़ी पहनाते वो पीछे हटी और बेड पर रखी टाई उठाई। आज हॉस्पिटल में क्या मसरूफियत है आपकी? आबरू सवाल करते टाई उसके गर्दन की गिर्द बांधने लगी। कुछ खास नहीं, बस एक अहम मीटिंग है और एक माइनर सर्जरी। क्यों, क्या हुआ? वो जवाब के साथ एक सवाल भी कर चुका था। हो सके तो आज जल्दी घर आ जाइएगा। वो अब कोट उठाते हुए उसके पीछे आ खड़ी हुई। कितना जल्दी? ताजफिन कोट पहनते हुए उसकी जानी पलटा। शाम तक। वो उसके सामने खड़ी थी। वो शायद पहली बार ऐसी फरमाइश कर रही थी। ओके मैडम, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाम तक घर आ जाऊँ, वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर आबरू मुस्कुराते हुए उसका कोट दुरुस्त किया और वो दोनों कदम उठाते बाहर की जानिब चल पड़े। वो इस वक्त किचन में खड़ी काम में मसरूफ़ थी। अफाक कुछ देर पहले ही ड्यूटी से घर वापस आया था। इस्बा ने सामने पड़ी कटी हुई सब्जियां उठाई, चूल्हे पर रखे हुए बर्तन में डाली और चम्मच उठाते बर्तन घुमाने लगी कि इतने में अफाक फ्रेश होकर कदम उठाता किचन में आया। आहट की आवाज़ पर वो पलटी। वो फ्रिज के सामने खड़ा था। अम्मी की तबीयत अब कैसी है? पानी की बोतल निकालते उसने इस्बा को मुखातिब किया। राबिया बेगम की तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी, अब काफ़ी बेहतर है। मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले ही खाने के बाद दवाई दी थी, अभी वो सो रही हैं। इस्बा ने मुकम्मल तफसील देते सॉस उठाई, जबकि अफाक अस्पात में से हिलाते हुए बोतल वापस फ्रिज में रख रहा था। महमल भी नहीं आई अभी तक? वो कदम उठाता इस्बा की जाने बढ़ा। नहीं, मगर थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था। आज काम ज़्यादा है इसलिए वो लेट हो जाएगी। महमल पिछले माह से एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर पढ़ा रही थी। अफाक एन उसके पीछे आ खड़ा हुआ। क्या बन रहा है आज? इतने करीब से आती आवाज़ पर इस्बा का हाथ रुका। पास्ता? इस्बा के जवाब पर उन दोनों के दिमाग में माजी का एक ही वाक्य नमूदार हुआ था। सॉस पकड़ाऊँ? अफाक के शायद भरी आवाज़ पर इस्बा तेज़ी से पलटी। अफाक 2 कदम पीछे हटा। अफाक? लहजे में एहतजाज था। क्या हुआ? वो अनजान बना। बाज आ जाएं आप, वो खफगी से भवें सुकेड़ते हुए बोली। मगर बताओ तो सही, हुआ क्या? उसे यूँ तंग करना अफाक का पसंदीदा काम था। इतने अनजान मत बने आप, सब समझ रही हूँ मैं। इस्बा की बात पर वो दोबारा बोला। अच्छा, तो मुझे भी बताओ कि क्या समझ रही हो? इस बार इस्बा कुछ कहने ही के बजाय उसे घूरने लगी कि एकदम कुछ याद आया। वैसे एक बात तो बताएं कि उस दिन जब आपको मालूम हो गया था कि मैं आपको नहीं, अपनी उंगली अफाक के सीने पर रखते उसने बात जारी रखी, बल्कि मेहमान को बुला रही हूँ, तो आप वहाँ से गए क्यों नहीं थे? तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। एक के बाद एक हुक्म दे रही थी तुम। कभी क्लेचर पकड़ा दें, उसको बालों में लगा भी दें, फिर पास्ता टेस्ट करें। वो मज़े से उसकी बात का जवाब देने लगा। और अगर मैं चला जाता तो तुम्हारे वो तासुरात कैसे देखता? उसके नाक पर आए गुस्से को देखते अफाक ने उसके माथे पर आए बाल पीछे किए। बहुत बुरे हैं आप, वो गुस्से से बोलते हुए पलटी। बहुत पसंद है तुम्हें ये पास्ता? अफाक दोबारा बोला, जिस पर उस बार इस्बा का हाथ मैं पकड़ा हुआ चम्मच उसकी जानिब करते बोली। अब बस भी कर दें अफाक। अफाक ने फ़ौरन सरेंडर करने के अंदाज में अपने हाथ ऊपर किए, जिस पर इस्बा मुस्कुराहट छुपाते हुए पलटी। अच्छा बाबा, छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि पास्ता के अलावा क्या बनाया है? इस बार भी अफाक ने पास्ता के लफ्ज़ पर जोर दिया। अफाक, अगर अब आपने दोबारा मुझे तंग किया तो आपको खाना नहीं मिलेगा, वो आखिर हथियार इस्तेमाल करते बोली, जिस पर अफाक हंसने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं? अपना निशाना खता होते देखकर वो खफगी से बोली, जिस पर अफाक ने आगे बढ़ते उसे अपने साथ लगाया। क्या मुझे मालूम है कि मेरी बीवी इतनी जालिम नहीं है कि वो मुझे भूखा रखे। वो जानता था कि अब मज़ीद तंग करने पर इस्बा अपना आखिरी और सबसे भारी हथियार इस्तेमाल करते रोने लगेगी,
जबकि दूसरी जानिब इस्बा एक लम्हे में अपनी सारी खफकी भूल गई और मुस्कुराते हुए उससे अलग हुई। अच्छा बताओ तो सही कि और क्या बनाया है? आफाक ने अपना सवाल दोहराया। बिरयानी बनाई है आपके लिए, उसने आगे बढ़कर चूल्हा बंद करते जवाब दिया। पास्ता भी तैयार था। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ, वो प्लेट्स निकालते हुए बोली। तुम अकेले क्यों करोगी, मैं भी लगवाता हूँ साथ। उसके हाथ से प्लेट्स लेते वो टेबल की जानिब चल पड़ा, जबकि इस्बा अब ट्रे उठाए उसमें बिरयानी निकाल रही थी। कुछ देर बाद वो पास्ता की प्लेट उठाए आफाक के साथ टेबल के जानिब जा रही थी, जिसके हाथ में पानी का जग और ग्लास मौजूद थे। और एक बार फिर आफाक की जानिब से की गई किसी बात पर वो खफकी से उसकी जानिब देख रही थी, जबकि आफाक हंसते हुए उसके तासुरात से महसूस हो रहा था। घड़ी इस वक्त दोपहर के 3 बजा रही थी। फायका बेगम मुलाजमा को जूस का कहते हुए बाहर लॉन्च में आई कि नज़र फयाज साहब की जानिब गई, जो तेजी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आए। वो आज घर पर ही थे। वो चेहरे से बेहद परेशान नजर आ रहे थे। फयाज, क्या हुआ? वो उन्हें ड्रेस पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट में देखते उनके पास आई। पाँव में पहने हुए शूज से वाज़ेह था कि वो कहीं जाने के लिए तैयार होकर आए थे। सब ठीक है ना फयाज? वो उनके पास पहुंचते हुए बोली। एक इमरजेंसी हो गई है। उनके लहजे से वाज़ेह था कि मामला संगीन है। मगर कुछ तो बताएं फयाज कि क्या हुआ है? उन्हें भी परेशानी ने आन घेरा। दिल में वसवसे से पैदा होने लगे। गफ्फार की कंपनी में आग लग गई है और 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उनके लहजे में अफसोस था, जबकि फायका बेगम हैरान व परेशान खड़ी थी। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि उसका बेटा हमदान वो भी इस वक्त वहीं था। ये खबर पिछली खबर से ज़्यादा तशवीशनाक थी। ओ मेरे खुदाया, अब क्या होगा फयाज? और आप कहाँ जा रहे हैं? उनके लहजे में अफसोस का आंसर वाज़ेह था। गफ्फार के पास उसका बहुत नुकसान हो गया है फायका। नहीं तो एक तरफ, मगर उसका वाहिद सहारा उसका बेटा। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके। मामला वाकई बहुत संगीन और तकलीफ दे था। वो इस वक्त बेहद परेशान होगा, इसलिए मेरा उसके पास जाना ज़रूरी है। वो ये कहते कदम उठाते बाहर की जानिब बढ़ गए, जबकि फायका बेगम के दिमाग में उनके कहे अल्फाज गूंजने लगे थे। उसका वाहिद सहारा उसका बेटा। साले बेगम से मिलकर वो दोपहर 2 बजे तक वापस आ गई थी। अब उसे आज शाम के लिए तैयारियां करनी थी। पिछले माह ताशफीन के तमाम एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए थे और अभी कुछ रोज़ पहले ही रेजिडेंसी मुकम्मल होने पर अब वो असिस्टेंट सर्जन से बाकायदा तौर पर कार्डियक सर्जन बन गया था, जिसकी खुशी में आज आबरू बाकी सब घर वालों के साथ मिलकर उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। घर आते ही वो मुलाजमा को छुट्टी दे चुकी थी, क्योंकि आज वो खुद खाने में सब चीज़ तैयार करने वाली थी। नूर उस वक्त उसके साथ किचन में मौजूद थी, जबकि सबरीना कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गई थी। केक का ऑर्डर वो घर वापसी आते हुए देकर आई थी। वो दोनों किचन में ही खड़ी थी कि ज़ाविया लॉन्च में दाखिल हुआ। आवाज़ बुलंद सलाम लेते वो सबरीना के कमरे में गया और फिर फ्रेश होकर कुछ देर बाद उनके पास मौजूद था। उसके आते ही नूर आबरू को मुखातिब किया। भाभी, एक बात बताऊँ आपको? कहो। आबरू ने चॉपिंग बोर्ड पर रखे प्याज को काटते हुए जवाब दिया। जब से आपने ज़ाविया के साथ जाना शुरू किया है ना, तब से ही ये 6 बजे आता है, वरना तो ये रोज़ 2 बजे ही घर पर होता था। जैसे आज इतनी जल्दी आ गया है, क्या इसे वहाँ कोई काम नहीं? नूर की बात पर आबरू के बजाय ज़ावियर बोलने लगा। आप अपने काम से काम रखें नूर साहिबा, मुझे और बहुत काम होते हैं। वो तो आज घर पर काम था, इसलिए जल्दी आया हूँ, वो नूर को घूरते हुए बोला। और भाभी, ये आपकी मदद करवा रही है ना, या यहाँ खड़ी सिर्फ अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर रही है? पहले वो आबरू के सामने यूँ लड़ने से गुरेज करते थे, मगर वक्त के गुजरने के साथ साथ अब वो उसके साथ भी घुल मिल चुके थे। बिल्कुल मदद करवा रही है, बल्कि एक डिश तो नूर मेरे आने से पहले ही तैयार कर चुकी थी। आबरू की बात पर नूर ज़ावियर को ज़बान चढ़ाते हुए बोलने लगी। लो, हो गई तसल्ली? इससे पहले कि ज़ावियर कुछ कहता, नूर फिर से बोलने लगी। भाभी, एक बात तो बताएं, ये ज़ावियर कैसा वकील है? मुझे तो बिल्कुल ही फारिग। और मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ तुम्हें। भाभी का फेवरेट जूनियर हूँ मैं। क्यों भाभी, सही कह रहा हूँ ना मैं? ज़ावियर की बात पर आबरू ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। उसकी खट्टी मिट्टी नोक-झोंक की अब उसे आदत हो चुकी थी। यूँ ही काम करते करते शाम के 5 बज गए। ऑर्डर किया हुआ केक भी ज़ावियर ला चुका था। लॉन्च में एक हिस्से को वो तैयार करने में मसरूफ़ थे। आबरू के साथ मिलकर वो दोनों गुब्बारे लगा रहे थे, जबकि सबरीना उनके पास बैठी मुस्कुराते हुए अपने घर की रौनक को देख रही थी। केक के लिए टेबल सेट करते अब तमाम काम मुकम्मल हो गया था। आबरू तैयार होने के लिए कमरे में आई। सुर्ख रंग का पाँव तक आती हुई कमीज़ के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहने वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। कमीज़ के दामन और आस्तीनों पर सफ़ेद रंग की मोतियों से हुआ काम उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था।
बालों को खुला छोड़ते उसने सफ़ेद रंग के टॉप्स उठाए और कानों में पहनने लगी। कुछ देर बाद चेहरे पर हल्का सा मेकअप करते उसने बेड पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाया और सफ़ेद रंग की छोटी सी हील वाला जूता पहनते वो मुकम्मल तैयार थी। वो आज बहुत दिल से तैयार हुई थी। कदम उठाते वो बाहर की जानिब चल पड़ी। इंतज़ार था तो अब सिर्फ ताशफीन का। रात के 10 बजे भी जब ताशफीन वापस न आया तो आबरू ने उसे कॉल की। एक नहीं, दो नहीं, वक्फे वक्फे से 10 बार कॉल की, मगर जवाब नदारत। सबरीना, जावियार और नूर की कॉल्स भी वो नहीं उठा रहा था। हॉस्पिटल फ़ोन करने पर उन्हें मालूम हुआ कि सर्जरी में मसरूफ़ है। एकदम सारी खुशी मान पड़ गई। आबरू को अफसोस के साथ साथ गुस्सा आने लगा था, मगर वो खामोशी से उनके साथ बैठी रही। आबरू बेटा, परेशान मत हो, वापस आने दो, फिर मैं उससे पूछूंगी कि तुम्हारे कहने के बावजूद भी जल्दी क्यों नहीं आया। उनकी बात पर आबरू अफसरदगी से मुस्कुराई। वो ताशफीन की माँ होने के बावजूद उसका साथ दे रही थी। मैं परेशान नहीं हूँ अम्मू जान, आप लोग बैठे, मैं खाने लगाती हूँ। अब उन्हें वो मज़ीद इंतज़ार नहीं करवा सकती थी, जबकि दूसरी जानिब सबरीना भी जानती थी कि ताशफीन को आने में बहुत देर हो जाएगी। जी, तो यहाँ था ये पार्ट कंप्लीट और अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब एंड हो गया है हर स्टोरी का, सब मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, सब सस्पेंस ख़त्म हो गया है और सिर्फ एक बचता है जो सबसे बड़ा है, शाहज़ैन वाला। तो मुझे गफ़्फ़ार से ऐसी वाइब आ रही है जो अब तक सब चीज़ में फ़ायका का साथ दे रहा था, जिससे मीटिंग होती थी फ़ायका की, और अब उसके बेटे के साथ ये हादसा हुआ है तो और ज़्यादा यकीन होने लगा है। तो पता नहीं, देखते हैं सही होगा या नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।